السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 95 ہے، 95 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں۔ وہ اتفاق سے 2 دن جو ہے وہ قرآن کے بارے میں بات ہو گئی، منہیات کے بارے میں کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا چیزیں منع کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ عز وجل یوم القیامۃ اجزہ، رواہ ابو داؤد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھے اور پڑھنے کے بعد وہ اس کو بھول جائے تو قیامت کے دن وہ جذام کی جیسی بیماری جو ہوتی ہے، جس کو کوڑ کہتے ہیں، لیپرسی، اس شکل میں پروردگار عالم کے سامنے وہ ہوگا۔ لہذا قرآن مجید کے بارے میں یہ سختی سے ہے کہ آپ جو پڑھیں اس کو بھولیں نہیں۔ یہ بھولنے سے مطلب کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہ حافظ سے خطاب ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے ان کو کیا ہے کہ ہمیشہ زندگی بھر اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنے کی کوشش کرنے کے بعد بھول جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اس کی ترتیب ہے یاد کرنے کی، وہ پوری کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود بھول گیا، وہ اللہ کے نزدیک قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن ایک حافظ قرآن ہے اور سال میں جس طریقے سے، کیونکہ حافظ قرآن اگر ڈیلی جو ہے وہ کم سے کم آدھا پارہ نہیں پڑھے گا، جب پڑھ چکا ہے تو اس کو یاد نہیں رہنا ہے۔ یا ایک رمضان میں سنانے کی ترتیب ہے، اگر وہ اس کو نہیں سنا رہا ہے تو بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو اس نے ترتیب اگر اختیار نہیں کی یاد رکھنے کی، کوشش پوری نہیں کی، تو یہ بھی اس پہ شامل ہے۔ یہ پہلا خطاب ہے کہ حافظ اس سے مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عام ہم لوگ قرآن مجید حافظ نہیں ہیں اور بچپن میں کچھ صورتیں یاد کی گئی ہیں اور آج وہ صورتیں کیا ہے وہ ہم کو یاد نہیں ہے، یا یہ بھی اس پہ شامل ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ جو بچپن میں صورتیں جتنی بھی یاد کی گئی ہیں ان کو ہمیشہ پڑھتے رہے، اس کے باوجود نہیں یاد رہا، وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان صورتوں کو ہم اب سال بھر پڑھتے ہی نہیں ہیں، جن کو ہم نے یاد کر رکھا ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 3 لوگوں نے کہا، اس کی تشریح میں کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ نے پڑھا، یاد کرنے کی باتیں، قرآن مجید کو آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اب اس کا پڑھنا ہی بھول گئے ہیں۔ مطلب ہاؤ ٹو ریڈ، کیسے قرآن کریم پڑھا جائے، وہ الفابیٹیکلی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بچپن میں پڑھ کر کے چھوڑ دیا، اب کبھی قرآن مجید نہیں اٹھاتے ہیں، تو وہ جو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا ہی کیا ہو گیا ہے، بھول گیا ہے۔ اس سے مراد جو ہے بعض لوگوں نے کہا حفظ نہیں ہے۔ تو تینوں چیزیں بہرحال مراد لی جا سکتی ہیں۔ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جو حفاظ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کے یاد رکھنے کی، اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ جو غیر حافظ ہیں اور چند صورتوں کے حافظ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو برابر نماز میں کیا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ وہی ایک ترکیب، بہترین ترکیب ہوتی ہے۔ 10 صورتیں بہت لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو 20 یاد ہوتی ہیں، وہ لگاتار کیا کریں، اس کو پڑھتے رہیں۔ تیسری کیفیت بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی پڑھنا ہی بھول جائے کہ اس میں یہ عربی کیسے لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو مثال دی، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی مثال اونٹ کے مانند ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے، آپ اس کو خوب کھلائیں، خوب پلائیں، اگر آپ نے اس کو باندھا نہیں اپنے دروازے پر تو اونٹ کیا ہو جائے گا، لاپتہ ہو جائے گا، آپ کو ملے گا نہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی کہ اگر آپ نے اس کو ٹھیک سے نہیں باندھا تو یہ فوراً کیا ہے، ہمارے دماغ سے جو ہے نکل جائے گا۔ لہذا اس کے لیے سختی، اسی لیے قرآن کا حفظ کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ قرآن کے حفظ کو برقرار رکھنا مشکل کام ہے۔ لگاتار جب تک آپ اس سے نہیں جڑے رہیں گے، آپ اس کی حافظ چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ 20 صورت ہم نے یاد رکھی ہے اور ہمارے سے کیا ہو رہا ہے، 20 میں سے پتہ چلا کہ 10 غائب ہو چکی ہیں۔ اب جس نے جو ہے 114 صورتیں یاد کر رکھی ہیں، وہ اگر لاپرواہی کرے گا تو رکے گا ہی نہیں۔ لہذا یہ بات منع کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔
अबू दाऊद की रवायत है कि मन क़ाल फी किताबी अज़्ज़ व जल्ल बिराइही फ़असाबा फ़क़द अख़्ता। ये बात बना की गई है कि कुरान करीम की आयतों को पढ़ने के बाद अपनी तरफ से उस आयत के बारे में एक राय कायम करना। आपने फरमाया कि अगर आपने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने कहा कि मैं ये समझता हूं कि इसका ये मतलब है, तो आपने अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारा समझना सही है तो भी आप गलत हैं। तुम्हारा समझना अगर सही है तो भी आप गलत हैं। क्या अल्फाज आ रहे हैं कि फासाबा, कि आपने उस आइडिया को पकड़ लिया कि यही है मकसद, लेकिन वो बातें किसी सहाबी से लेकर के अब तक मुफस्सिरीन ने बयान नहीं की है और उसके बावजूद आपने उसको बयान किया। आपने फरमाया फ़क़द अख़्ता, तो आपने खता किया। ये बड़ी संजीदा बात है कि कुरान करीम के बारे में अपनी राय देना। राय देने का मतलब समझ लीजिए, जब एक आदमी तफसीर करता है, आलिम तफसीर करता है, एक तफसीर तो ये होती है कि जो लिखा हुआ है हम वो पढ़ दे रहे हैं, या ये है कि देख कर ना पढ़ने के बजाय हमने 10-20 तफसीरें देखी हैं और देखने के बाद हमने क्या कर दिया है, उसको आपके सामने बयान कर दिया है। ये मुफस्सिर नहीं है। जैसे हम लोग जो दर्स कुरान आपके सामने करते हैं, हम कोई मुफस्सिर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, 5 से 10 लोगों की बातें पढ़ करके और आपके सामने उसको एक अच्छे अंदाज में, वो मुश्किल अगर जबान में लिखी हुई थी तो मैंने क्या कर दिया, आपको इसी जबान में आपके सामने पेश कर दिया। ये कोई तफसीर करने वाला ये मुफस्सिर नहीं है। मुफस्सिर क्या है कि कुरान करीम की उन आयतों से बताता है कि इसके ये माने निकलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उसको इजाजत है ये कहने की कि साहब इसका ये माना निकलता है? तो जब तक नजरिया नहीं बदलेगा कुरान मजीद की आयत से, तब तक ये मतलब मुराद नहीं है। नहीं समझे? एक आयत है कुरान मजीद सूरह ज़कात के बारे में कह रहा है कि खुज़ मिन अम्वालिकुम सदका, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ज़कात कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद मुसलमानों के दरमियान में जो उसकी मुस्तहिक़ है बांट दीजिए। खुली हुई आयत है, तमाम सहाबा से लेकर के नीचे तक इसका तर्जुमा कर रहा है। अब एक साहब उसका तर्जुमा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि खुज़ मिन अम्वालिकुम, अल्लाह ताला कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे ज़कात लीजिए और लेने के बाद लोगों में तकसीम कर दीजिए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में से चले गए, लिहाजा ज़कात का निज़ाम खत्म हो गया। ये तर्जुमा कर रहा है, ये तफसीर कर रहा है। ये उस पूरे नजरिए को क्या कर दिया उसने, उठा करके कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। या मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की आयत है कि इन अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। आयत खत्म नहीं हुई है। एक आदमी तर्जुमा कर रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारा माल और जान खरीद लिया, लिहाजा आप जमात में निकल जाइए। ये अल्लाह ताला कह रहा है। आगे की आयत पढ़ नहीं रहा है कि युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून, कि वो लोग जो अपनी जान और माल जिहाद में लगा देते हैं और अपनी जानें मरवा देते हैं या जानें ले लेते हैं। आपने आधा काट करके आपने अपने माने में उठाकर ले लिया, नजरिया बदल दिया। तबलीग के लिए नजरिया दूसरा मौजूद था, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर दीजिए उस चीज की जो आपको बात पहुंची है। आपने उस जिहाद वाली आयत के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये कुरान मजीद में तहरीफ हुई। अब बड़े बड़े लोग जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तमाम उलमा का इत्तिफाक है, ऊपर से नीचे तक का इत्तिफाक है कि आयत जिहाद पर है, इसको तबलीग के माने में कतई न लिया जाए। लेकिन लोग, क्योंकि वो तमाम आयतें जो जिहाद की हैं उसको जिहाद पे नहीं, तबलीग के लिए एक नहीं 50 आयतें माना निकालती हैं, 50 आयतें हैं, हजारों हदीसें मिलेंगी, आप उनको लेकर के आइए। लेकिन कुरान मजीद के साथ ऐसा कर रहे हैं, एकदम गलत है। जैसे वनफिरू खिफाफा व सिकाला, ये जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरनाक किस्म की जंग का मामला हुआ, हालात खराब थे, आपने फरमाया देखो इसमें तो सबको निकलना है, सबको निकलना है, चाहे आप हल्के हों चाहे बोझल हों। किस काम के लिए? जंग के लिए। आपने कहा सबको निकलना है, सबको जाना है, जमात में जाना है। गलत माना लिया जा रहा है। क्यों सवाब कमाने के लिए गुनाह क्यों कमाने की जरूरत है? क्यों गुनाह कमाया जा रहा है? हमारा मकसद तो किसी तरह जन्नत में एक अपना कमरा मिल जाना है, लेकिन ऐसा काम करें कि जो कुरान मजीद के खिलाफ हो। ये तो किसी आलिम से आप पूछ लीजिए, मैं कम से कम 50 से 60 तफसीरें देख चुका हूं, आपको मस्जिद में बैठा हुआ हूं, कि वन फिरू खिफाफा व सिकाला,
को धड़ल्ले से बयान किया जा रहा है, बयान किया जाता है। 50 से 60 तफसीरें देखा हूं, किसी एक मुफस्सिर ने नहीं लिखा है कि इससे मुराद तबलीग, किसी ने नहीं लिखा। कैसे लिख देगा? यही एक आयत है कुरान करीम में कि जो नफीर आम है। नफीर आम जानते हैं, जब जिहाद डिक्लेयर होता है तो 2 टाइप्स के जिहाद होते हैं। एक होता है वॉलंटरी तौर पर आपको शिरकत की बात कही जाती कि आप शामिल हो जाइए। एक होता है कि एवरी अडल्ट मुस्लिम शुड बी पार्टिसिपेट, हर मुसलमान बालिग को इसमें हिस्सा लेना है, उसको कहते हैं नफीर आम। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही मरतबा हुक्म हुआ है, पूरी 23 साल जिंदगी में एक ही मरतबा हुक्म हुआ है, या एक मरतबा बाद लोग और कहते हैं यही वो आयत है जिसमें नफीर आम है। आपने उस पूरी आयत के कॉन्सेप्ट को चेंज किया है, नहीं बख्शा जाएगा। किसी मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने अपनी जो हदीस की तफसीर तिरमिज़ी में उन्होंने सराहतन नाम लेकर के इस आयत को कहा है कि इस आयत के साथ जो भी किया जा रहा है टोटल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं बाखुदा कह रहा हूं, मेरा मकसद ना मैं तबलीग के खिलाफ, लेकिन ये हम लोग गलत बातों पर ना बोलने की वजह से छोटे छोटे लोग जिनको कुरान पढ़ने का सलीका नहीं है, वो इन आयतों के लेकर के धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। क्यों? हमने शांति का टैबलेट खा रखा है। हम जब अवाम की गलती को जब तक आलिम नहीं बताएगा, कभी जिंदगी में अवाम का सुधार नहीं हो सकता है। ये खामोशी, आप मुझे जितना भी बुरा कहना है कह लें, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं कि अल्लाह की किताब के साथ ये जो कुछ किया जा रहा है, किसी जगह से आप फतवा नहीं ले सकते हैं कि वनफिरू खिफाफा व सिकाला की आयत तबलीग के लिए है। कोई फतवा माई का लाल दे नहीं सकता है, इतनी सराहतन ये आयत है। फिर उसमें दूसरा झूठ अबू अय्यूब अंसारी का बोला जाता है। यही मरकज में बात हो रही थी, मौलाना साहब बात के, मैंने बाद में जाके पूछा, हमने कहा लिखा हुआ है? कहा कि नहीं, बड़े बोलते रहे। हमने कहा बड़े तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे, तुम अपनी कब्र में खुद जाओगे, बड़े अपनी कब्र में जाएंगे। ये बड़े के कह करके जो चक्कर चला रखा है कि बड़े ने कह दिया हम निकल जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। कुरान मजीद ने कहा है कि जब परवरदिगार आलम पकड़ेगा इनको तो बहुत से लोग कहेंगे कि परवरदिगार आलम इन बड़ों ने मुझे बर्बाद किया है। ये कुरान की आयत है कि फादल्लूना सबीला इन सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला। अल्लाह ही हमारे बड़े ने हमको बर्बाद किया है, हमारे सरदारों ने हमको बर्बाद किया है। उनका नाम, लेकिन वो समझेंगे कि बड़े पकड़ जाएंगे, हम निकल जाएंगे, तो कहेगा इनको डबल अज़ाब मारो, इनकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद है। तो अल्लाह ताला इनको छोड़ेगा नहीं कि नहीं आप बड़े का मान ले। क्यों? क्योंकि आप दुनियावी मामले में तो बड़े कह करके आप अपना नुकसान कभी जिंदगी में नहीं किया आपने, इसमें आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? लिहाजा इस बात को ये नहीं देखें कि कहने वाला ये हमारा मुखालिफ है, इन्हें तबलीग को नहीं मानता, ये सब कह के अपने दिल को नहीं बहलाएं। हकीकत को जानने की फिक्र करें और सही बात को समझने की फिक्र करें। और इसमें जो भी बोल रहे हैं, नीचे वाले बोले ऊपर वाले बोले, कोई भी सही नहीं कह रहा है। अब आपके दिमाग में बात होती इतने बड़े बड़े, वो भी तो बड़े बड़े उलमा हैं, ये जो आगे बात आती है कि आखिर वो जो बोल रहे हैं वो भी तो बड़े बड़े उलमा हैं। कोई बड़ा आलिम उस वक्त तक बड़ा है जब तक हमारे सहाबा और ताबई की तफसीर से जुड़ा रहे, तब तो बड़ा है। और अगर सहाबा और तफसीर से हट करके राय काम करता, कोई बड़ा नहीं, चाहे वो कितना बड़ा। हमारा बड़प्पन, हुजूर ने क्या फरमाया कि लोगों मेरा तरीका पकड़ना, वालेकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। आप मेरा तरीका पकड़िए और फिर मेरे सहाबा का तरीका पकड़िए। किसी सहाबी ने ये तफसीर की है? अबू अय्यूब अंसारी का वाकया कि अबू अय्यूब अंसारी बोलते हैं कि मुझे जमात में जाना है। अरे जमात का लफ्ज तक नहीं है वहां, क्यों हदीस को तोड़ मरोड़ रहे हो? सरकार दो आलम ने फरमाया मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो मेरा नाम लेकर के मुझ पर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मुतवातिर हदीस है, तवातुर सदीद को कहते हैं कि जिसमें इतने सहाबी ने ये बात कही है कि जिनका झूठ पर इत्तेफाक होना नामुमकिन है। आप अबू अय्यूब अंसारी को लेकर के जा रहे? अबू अय्यूब अंसारी जब जिहाद की बात हुई, उस दिन दुनिया का मामला जिहाद की बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई आप ताकत नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मैं निकलूंगा। जब जिहाद हटा करके आप बोलते हैं जमात पे जा रहे, क्यों ऐसा माना ले रहे हैं? क्यों रसूल अकरम पर इल्जाम और बोहतान रखा जा रहा है कि रसूल ने यह बात कही है? क्या हमारे पास तबलीग करने के लिए आयतें मौजूद नहीं है? क्या हदीसें मौजूद नहीं है? उन हदीसों को लेकर के हम अपना माना क्यों नहीं बयान कर रहे हैं?
धड़ल्ले से जो है वो बोला जा रहा, वो ये अंसारी का नाम लेकर के। एकदम झूठी बात है, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। लिहाजा ये अल्लाह के रसूल फरमाया अगर तुम सही भी करो तो भी गलत कर रहे, इसीलिए कहा गया है कि अगर आपने सही बात कही है तो भी आपने गलत बात कही है। लिहाजा जब नजरिया बदल जाएगा तब मतलब होता है कि आपने तफसीर बिल राय की। क्या किया? इसीलिए कहा गया है, मौलाना ज़करिया अलैहि रहमान ने जो लिखा है कि तफसीर करने के लिए, यानी आप किसी के मोहताज नहीं, आप डायरेक्ट कुरान मजीद को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने लिखा है कि 15 उलूम की जरूरत है, उसके बाद आप अपना मुंह खोलिए। यही हदीस है, इसी हदीस के दर से कहा जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि कुरान मजीद के किसी कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। ऐसे जितने तबके दुनिया में बने बातिल, सब ने कहां से दलील पकड़ी मालूम आपको? सब ने कुरान ही से दलील पकड़ी है, सब ने। जैसे मैंने ये बताया, ये जो पहला वाला बताया कि खुद बिन अम्वालिकुम, शियों ने कहा कि ज़कात का नज़्म खत्म, ज़कात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़कात लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए दुनिया से, ज़कात चली गई, खत्म हो गई ज़कात, ज़कात का कोई नज़्म नहीं है। उन्होंने इसका माना ये उठा करके ले लिया। तो ऐसे जो है माना नहीं लिया जाए। फिर आपने फरमाया दूसरी बात कि मन क़ाल फ़िल क़ुरान बिग़ैरि इल्मिन फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। उसमें तो ये कहा गया था कि उसने गलती की, इसमें कहा जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल फ़िल क़ुरान, कि जो कुरान के बारे में कहे बिग़ैरि इल्मिन, बगैर मालूमात के, फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। नेकी करके जहन्नम में ना जाए, खुदा के वास्ते। एक आदमी नेकी करके जहन्नम में जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। बुराई करके जहन्नम में जाना है तो बुराई करके लोग जहन्नम में जाएंगे, लेकिन ऐसी पॉलिसी नहीं अख्तियार करें, नेकी करें और जहन्नम में जाएं, ऐसा नहीं अख्तियार करें। नेकी का बदला नेक होना चाहिए, नेकी का बदला जहन्नम हो जाए, ये बहुत बुरी बात है। कितने लोग हैं, हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी ने बगैर तकल्लुफ अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। एक वक्त व्हाट्सएप पर डेली अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील अमीन ऐसा, अरे भाई एक मरतबा सोच लो। हुजूर ने फरमाया मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन, उसके अलावा कफा, फरमाया वकफा बिल मरी कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आपने फरमाया कि झूठा होने के लिए काफी है कि जो बात सुने बगैर तहकीक के पास कर दे, तहकीक नहीं करता कि ये बात में सच्चाई कितनी है। कुरान मजीद कहता है वइन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स खबर लेकर के आ जाए जिसके बारे में आपको पहले से मालूम नहीं है, या वो फासिक है, दीन की धज्जियां उड़ाता है, तो आपने फरमाया तहकीक करें कि जो बात कही जा रही है ये कितनी सच है। आप नहीं साहब दुर्गत बेल में आग लगी है, अरे तहकीक कर ले, बहुत फोन पर फोन करके दुर्गत बेल में आग लगी, वहां खुद भी नहीं लगा हुआ भाई। ऐसा नहीं होता है कि आप जो चाहें बोलना शुरू कर दें। लिहाजा कुरान के बारे में तो बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। फिर आपने फरमाया कि ला यमस्सुहुल कुरान इल्ला ताहिरुन, कुरान की आयत भी इसी से मिलती जुलती और हदीस भी कि कुरान करीम को पाक आदमी के अलावा कोई नहीं छुए। देखिए एक बात याद रखें, पढ़ना अलग चीज है, मतलब एक आदमी का वजू नहीं है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, कुरान पढ़ रहा है, कोई मसला नहीं है। छूने की बात है कि कुरान मजीद अगर आप छू करके पढ़ रहे हैं तो ऐसी शक्ल में बगैर ताहिर के, अब ताहिर से मुराद क्या है? चारों अइम्मा का कहना है कि ताहिर से मुराद वजू है, कि वजू किए बगैर कुरान मजीद को नहीं छुआ जाए, पढ़ा जाए, मैं नहीं कह रहा, इसको नोट कर ले, नहीं छुआ जाए। दूसरी तफसीर बाद लोगों का कहना यह है कि नहीं साहब, ताहिर से मुराद नापाक आदमी कुरान मजीद को नहीं छुए। तो लेकिन चारों अइम्मा की राय है ताहिर से मुराद वजू है, कि बावजू शख्स कुरान मजीद, इसमें जो हिफ्ज़ बच्चे करते हैं और प्रिंटिंग प्रेस में जो काम करते हैं, यानी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ कुरान, उसमें जो काम करते हैं, या ये जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, उनके बारे में ये बात कही गई है कि अगर उनका वजू नहीं हो तो फिर ऐसी शक्ल में भी वो कुरान करीम छू सकते, क्योंकि बार बार अगर उनको वजू की बात कही जाएगी, एक आदमी प्रिंटिंग प्रेस पे काम कर रहा है, उसको हर वक्त छूना है, पेपर इधर करना है, उधर करना है, तो इन दोनों लोगों के लिए इस्तिस्नाई कैफियत बयान की गई। क्यों? क्योंकि ताहिर